हाँ जी, की हाल चाल। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ 8.1 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਭਿਆਸ 8.1 ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਣ ਵੀ ਸਮਕੋਣ ਹੈ, AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ 24 ਅਤੇ BC ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦਾ B ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੈ, AB ਹੈ ਜੋ 24 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਮਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ, ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ AC ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ AC ਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, 24 ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ 7 ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ 24 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 576, 7 ਦਾ ਹੋਏਗਾ 49, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 625 ਜੋ ਹੈ AC ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ AC ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 625 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਜਾਣੀ ਕਿ 25, 625 25 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 625 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 25 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ A ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? cos A। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ A ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ A ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ A ਭੁਜਾ ਦੇ A ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੋਊ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ A ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ BC ਅਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣਾ AC। ਕਰਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨ। ਤਾਂ BC ਹੈ 7, AC ਹੈ 25, ਤਾਂ ਸਾਈਨ A ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 7/25। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ cos A। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ cos A ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਦੇਖਣਾ A ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ A ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਲੰਬ BC ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ AB ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ AB/AC, AB ਹੈਗਾ ਜੀ 24/25, ਤਾਂ cos A ਹੋ ਜਾਏਗਾ 24/25। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਈਨ C ਅਤੇ cos C। ਹੁਣ C ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ C ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ C ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੰਬ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? AB। ਤਾਂ ਸਾਈਨ C ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? AB/AC ਯਾਨੀ ਕਿ 24/25। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ cos C ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ cos ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਭੁਜਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਲੰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ BC/AC, ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ 7/25। ਤਾਂ ਸਾਈਨ C ਆ ਗਿਆ 24/25, cos C ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7/25। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
चित्र 8.13 इस चित्र की गल कर रहे टैन पी ते कॉट आर दा कीमत कढ़ के उन्हों दा घटाओ पता करना जी। आपां ने पता करना जी टैन पी घटाओ कॉट आर, ये चीज़ पता करनी आपां नूं क्या है। तो चित्र दे विच जिवें कि दिख ही रहा जी, समकोण त्रिभुज क्यू, समकोण है क्यू पी क्यू आर, ये 12 है ये 13 है। देखो ये 13 है, 90 के सामने कर्ण 13 हो गया जी। तो इतों आपां पता पाइथागोरस अनुसार, पाइथागोरस अनुसार पी आर का जो वर्ग है वो पी क्यू के वर्ग जोड़ क्यू आर के वर्ग के बराबर होएगा। यानी कि 13 का वर्ग जो है वो 12 के वर्ग जोड़ क्यू आर के वर्ग के बराबर होएगा। तो इतों आप क्यू आर की कीमत कढ़ांगे जी 169 माइनस इनू इधर ले जाएंगे 144 का वर्गमूल, तो कितना सीगा 25। तो क्यू आर की कीमत आ गई जी 5। तो हम अपन तिना की पता लग गई। तो आप टैन पी कढ़ांगे जी। जे पी की गल कर रहे हैं तो लंब होएगा ये, तो टैन का फॉर्मूला की होंदा जी, टैन पी का फार्मूला की लंब बटे आधार। हुण लंब की है जी पी के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग लंब है क्यू आर, आधार हो जाएगा जी पी क्यू। तो टैन पी की कीमत आ जाएगी जी 5/12। इस तरीके नाल क्यू आर की कीमत कढ़ी जाएगी। क्यू आर इस तरीके नाल आपां कॉट आर की कीमत करांगे जी। तो हुण कॉट का फार्मूला आपां नूं पता है जी आधार बटे लंब हुंदा। हुण क्योंकि आर आ, आर के अकॉर्डिंग आधार की होएगा, आर के अकॉर्डिंग लंब की होएगा 12। जे आर के अकॉर्डिंग लंब 12 है तो लंब हो गया पी क्यू, आधार हो गया हाँ लंब हो गया पी क्यू, आधार हो गया क्यू आर। तो यह क्यू आर यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू। हुण क्यू आर कितना जी 5 आप पिछे कढ़ के आए बटे 12। तो हुण सवाल दे विच देखो अपन दिता होया टैन पी ते कॉट आर का डिफरेंस करना। टैन पी की कीमत 5/12 जी, टैन पी की कीमत 5/12 ते कॉट आर की कीमत भी 5/12। तो इस तो की पता लगता कि दोनों की कीमत सेम ने, तो टैन पी माइनस कॉट आर की जगह की आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 जो कि आ जाएगा 0। तो सवाल हो गए जी। तीसरा सवाल अपना है जेकर साइन ए 3/4 हो तो पता करो कॉस ए अते टैन ए, ये पता कर देने जी। तो हुण आपां नूं पता कि साइन ए जो है, क्योंकि देखो इत्थे सारे दोनों दे विच ए एक एंगल दे नाल गल करिए तो आपां नूं लंब ते आधार एक बारी कढ़न की लोड़ आ, दूसरे की लोड़ नहीं है। तो हुण आपां नूं पता साइन ए का फार्मूला की होना चाहिए लंब बटे कर्ण, यानी कि बेस अपना परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो हुण जे यह 3/4 के बराबर है तो आप मान सकते हैं लंब कितना हो जाएगा जी 3K। के क्यों लिया जी, क्योंकि यह घटाउण तो बाद जो मिले आपां नूं वो है जी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो है जो आपां नूं घटाउण तो बाद मिले। तो कर्ण की हो जाएगा जी 4K। तो पाइथागोरस लगा के जी आपां ये आधार का पता करांगे, क्योंकि आपां नूं इन्हां दी इन्हां वाली आधार की लोड़ दोनों वेले पैनी है। पाइथागोरस की कहना जी, तो पाइथागोरस के अनुसार लंब का वर्ग यानी कि 3K का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग बराबर है। तो आधार का वर्ग बराबर आ जाएगा जी 16K का वर्ग माइनस 9K का वर्ग। तो आधार की आ जाएगा वर्गमूल के का वर्ग सी, तो के 16 चों 9 गया जी 7K का वर्ग, यानी कि वर्गमूल 7K। ये अपना आधार आ गया जी। तो हुण
cos A की ਹੁੰਦਾ जी आधार बटे कर्ण, आधार की है जी वर्गमूल 7K, कर्ण कितना जी 4K, तो K नाल K कट गया तो वर्गमूल 7/4 की आ गया जी cos A। तो उस तरीके tan A कितना ਹੁੰਦਾ जी लंब बटे आधार, लंब जानी कि 3K, आधार जानी कि वर्गमूल 7K, K नाल K फिर कट गया तो tan A की कीमत आ गई 3/7। चौथा सवाल जी कहता 15 cot A बराबर है 8 जी। तो पता की करना जी sin A ते secant A की कीमत पता करनी है अपने, मतलब sin A की अलग कढ़नी है, secant A की अलग कढ़नी है। तो 15 cot A है 8 के बराबर है, तो जे मैं कल्ले cot A की कीमत कड्ढां जी तो 8/15 हो जाएगा। हुण मैनूं पता कि cot A हुंदा की है जी आधार बटे लंब, तो 8K हो गया आधार तो 15K, ਜਾਂ कह लो कि 8 ਆਪਾਂ 8/15 हो गया। तो आप इत्थे ये हुंदा कि आधार जो है उन्होंने 8 ले लैंदे आ ते लंब जो है उन्होंने 15 ले लैंदे आ। तो पाइथागोरस अनुसार पाइथागोरस की थ्योरम की कहती है जी कि कर्ण का वर्ग की होएगा लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। हुण एक होएगा 8 का वर्ग, एक होएगा 15 का वर्ग, तो कर्ण कितना हो जाएगा जी 64 जोड़ 225 का वर्गमूल। तो ये हो जाएगा जी 299। तो कर्ण कितना हो जाएगा जी 17। जब हुण आपां नूं कर्ण आधार ते लंब पता लग चुका जी, तो sin A की होएगा, sin A होएगा लंब बटे कर्ण यानी कि 15/17। तो secant A की होएगा जी, secant ते अपन पता 1/cos A हुंदा, मतलब cos का उल्टा हुंदा, तो ये हो जाएगा जी कर्ण बटे आधार यानी कि 17 बटे आधार कितना आ गया जी 8। त्रिकोणमिति का अपना अगला सवाल 5वां कि जे सीकेंट थीटा, 5वां सवाल जो बोलता जी वो कहता कि जे सीकेंट थीटा 13/12 हो गए तो बाकी सारे त्रिकोणमिति अनुपात पता करो। मतलब आप साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट टोटल पता करना। सीकेंट आपको पता जी सॉरी साइन कॉस टैन कॉट ते कोसीकेंट पता करने। तो हम अपन पता कि सीकेंट थीटा जो है वो हुंदा कितना, वो आपां कॉस का उल्टा लेने हुन्ने जी। तो कॉस कितना हुंदा लंब बटे अपना कॉस हुंदा जी आधार बटे कर्ण। तो हुण जो नीचे आ जो जे आधार बटे कर्ण उपर हुंदा तो नीचे आने करके उल्ट जाएगा, यानी कि तो हुणे की हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हुण आपां नूं पता कि कर्ण की हो गया जी 13, आधार कितना हो गया जी 12। ये विचों सीधा ले लेना, जो नीचे वाली चीज़ नीचे मान लेने, जो उपर वाली उपर। के वाले मैथड च आपां क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट उलझदे ने तो आपां के वाला मैथड छड्डिया कि आपां डायरैक्ट लैके कोशिश करिए सॉल्व करने, क्योंकि आंसर उत्थे ही आना जी, के ने कट ही जाना हुंदा। तो पाइथागोरस तो आपां की कड्डांगे पाइथागोरस अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, क्योंकि आपां लंब की लोड़ है जी। लंब मिल जाए, लंब आधार ते कर्ण इन्हां तिन्नां तो मिल गई 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात अपने को बनते होंगे। तो लंब का वर्ग किहदे बराबर आ जाएगा जी 169 माइनस 144, 12 का वर्ग घटा देंगे इधर ले जाके। तो लंब आ जाएगा जी अपने को 25 का वर्गमूल यानी कि 5। तो हम आपां पता लंब कितना जी 5, आधार कितना जी 12, कर्ण कितना 13। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13, कॉस थीटा की हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि
12/13। टैन थीटा की हो जाएगा जी लंब बटे आधार यानी कि 5/12। कॉट थीटा की हो जाएगा जी आधार बटे लंब यानी 12/5। तो कोसीकेंट थीटा की हो जाएगा जी जो कि अपना साइन का उल्टा लेने होने कर्ण बटे लंब यानी कि 13/5। तो ये सारे त्रिकोणमिति अनुपात ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਕੈਂਟ थीटा की कीमत तो अगे कढ़ सकते हैं। तो अगला सवाल है जी अपना सवाल नंबर 6। कहना जेकर कोण ए ਅਤੇ कोण बी न्यून कोण होण ਤੇ ਜਿੱਥੇ cos A बराबर cos B ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ कोण A बराबर कोण B है। ਹੁਣ देखो जी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ कि कोण A ਅਤੇ कोण B न्यून कोण ਹਨ। न्यून कोण भाव ये दोनों कोण 90 डिग्री तो छोटे हैं। तो जे किसी त्रिभुज विच 90 तो छोटे कोण ने तो इसका मतलब उन्होंने विचों कोई एक कोण 90 या उस तो बड़ा होएगा। तो क्योंकि इन्होंने अगली शर्त अपन दी है कि cos A cos B मतलब त्रिकोणमिति की गल कर रहे हैं तो वो दोनों एक ही त्रिभुज के कोण बनणगे। तो आप एक त्रिभुज लवांगे जी एक त्रिभुज लई जिस दे विच दिता है कि cos A cos B के बराबर है। ए तो बी न्यून कोण ने जी तो मतलब कोण ए आप इनू लै सकते हैं कोण बी नू लै सकते हैं तो कोण सी आप समकोण लै लैने। तो हुण आपां नूं उन्हें कहा कि cos ए है जो वो बराबर है cos बी दे। आपां नूं पता cos का जो फार्मूला वो हुंदा आधार बटे कारण बेस जो आप कहने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो ए कोण की गल करते हैं तो आधार की होएगा ए दे सामने वाली भुजा की बन जाएगी लंब बी सी लंब हो जाएगा जी। तो आधार की होएगा ए सी कारण की हो जाएगा ए बी। उस तरीके ये दिते हुए तो चल रहे हैं जी आप ये चीज़ अपन दी हुई सी। न्यून कोण अपने मन्ने ने जी क्योंकि जे 90 तो दोनों कोण 90 तो छोटे होंगे जी। तो cos बी की आ cos बी के अनुसार हम लंब की हो जाएगा ए सी लंब हो जाएगा। तो आधार की हो जाएगा जी बी सी बटे कोण कारण की हो जाएगा जी ए बी। हुण इत्थे इन्हां दोनों केसां दे विच की साबित हुंदा जी कि दोनों के नीचे ए बी आउंदा तो सेम चीज़ आ रही है उन्हां दी रेशो दे विच। तो ए सी बराबर बी सी दे जी दोनों भुजावां बराबर हो गई। जो भुजावां बराबर हो गई तो एक अपने पढ़ी एक पिछे थ्योरम करी है जी कि समान भुजावां त्रिभुज दियां समान भुजावां तीसरी भुजा उत्ते समान कोण बनाउंदियां हन। एक ये अपनी देखो क्योंकि ये दो भुजावां बराबर हो गई तो यह त्रिभुज ए बी सी एक सम दो बाहु त्रिभुज है। सम दो बाहु मतलब कि आइसोसलस ट्रायंगल। आइसोसलस तो अपन पता है कि सम दो भुजी त्रिभुज सम आइसोसलस ट्रायंगल दियां जिहड़ियां सेम साइड्स हुंदियां ने वो सेम एंगल बनाउंदियां ने। तो आपां इहनूं इत्थे आ जाऊगा सानू पता है कि सम दो बाहु त्रिभुज दियां समान भुजावां समान कोण बनाउंदियां हन। भाव कोण ए किहड़ी बनाउंदी है जी कोण बी के बराबर। तो यह अपना आंसर है जी। यही चीज़ आपने सिद्ध करनी सी कि दिखाना सी कि कोण ए कोण बी के बराबर। तो सवाल नंबर 7 जी जेकर cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस cos थीटा। ये हल करना जी एक चीज़ तो अपने तो इनू हल करांगे। हम आपको पता कि cot थीटा जो है cot थीटा जो है 7/8 cot थीटा हुंदा। cot थीटा की कीमत की होंगी है जी आधार बटे कारण। तो आप इनू सीधा सीधा मान के चलते होंगे 7/8 cot थीटे की कीमत आ गई 7/8। तो आधार आप मान लेने होंगे 7 तो लंब आप मान लेने होंगे जी 8। तो पाइथागोरस अनुसार करण की आ जाएगा लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग 49 जोड़ 64। तो यदा वर्गमूल जी तो आ जाएगा जी वर्गमूल 113 जी। तो कारण जो अपना आ गया जी 113 7/8 तो अपने पाइथागोरस विच भर के 113 बना लिया जी। तो उस तो बाद हम अपन पता कि साइन थीटा कितना देगा 8/वर्गमूल 113 cos थीटा कितना देगा 7/वर्गमूल 113। तो हुण इस दियां कीमतां आपां इहदे विच सिद्धियां भर के भी कढ़ सकते हैं जी। कल्ली कल्ली कीमत भरांगे वो थोड़ा जा आपां कह देना कि आंसर सेम ही आएगा जिधर जिहड़े मर्जी मैथड नाल कर लीए। तो आप सीधियां कीमतां भर के हल करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा कितना जी 8/वर्गमूल 113 1 माइनस 8/वर्गमूल 113 बटे 1 प्लस 7/वर्गमूल 113 1 माइनस 7/वर्गमूल 113। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी अपन पता कि जे ए प्लस बी तो ए माइनस बी होवे तो वो हुंदा ए स्क्वायर माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इनू भरांगे जी तो की आ जो 1 का वर्ग माइनस 8/वर्गमूल 113 का वर्ग बटे 1 माइनस 7/वर्गमूल 113 का वर्ग 1 माइनस 64/113 1 माइनस 49/113। तो जो उपरले हल करा 113 लघुत्तम आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे नीचे वाले का आ जाएगा जी 113 माइनस 49। तो यह आ जाएगा 113/49 ये आ जाएगा 64/113। तो आ जाएगा जी 49/113 गुणा 113/64 113 कट गया जी। तो अपना आंसर आ जाएगा 49/64। इसी तरीके नाल इस सवाल का दूजा पार्ट cot स्क्वायर थीटा अपन सीधा देता जी cot थीटा जी 7/8 तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा वह वर्ग यानी कि 49/4। तो इतना अपन पता लगता कि दोनों का आंसर सेम होगा जी। अब यहाँ 60.1 का सवाल नंबर 8 कहते 3 cot A बराबर है 4 होवे तो पड़ताल करो कि 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपन दिता कि है जी cot ए 3 cot ए बराबर 4 तो cot ए की कीमत कितनी आ जाएगी 4/3। हम आपने जो पता करना वो अपन टैन की कीमत चाहिए एक cos साइन की। तो क्योंकि cot ए कितना गा 4/3 तो cot का फॉर्मूला की होंगे जी आप ट्रिक के विचों आंसर कढ़िया सी cot का फार्मूला होंगे आधार बटे लंब यानी कि इतने आधार कितना हो सकता 4 तो लंब कितना हो सकता 3। तो पाइथागोरस की मदद नाल
ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਜੋੜ 9 ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 5। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਦੀ 2a 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ ਦੀ 2a, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। 1 ਮਾਈਨਸ, ਹੁਣ ਟੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੰਬ ਬਟੇ ਆਧਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3/4 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3/4, ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਜੀ 1 ਪਲੱਸ 3/4 ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 1 ਮਾਈਨਸ 9/16 1 ਪਲੱਸ 9/16, ਤਾਂ 16 ਲਘੁੱਤਮ ਲਿਆ ਜੀ 16 ਮਾਈਨਸ 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ 16 ਲਿਆ ਜੀ 16 ਪਲੱਸ 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ 7/16 ਬਟੇ 25/16। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 7/16 ਗੁਣਾ 16/25, ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 7/25। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, cos ਦੀ 2a ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦੀ 2a। cos ਦੀ 2a ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ cos ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਲੰਬ, ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 4, ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ 5, ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3/5 ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹ 16/25 ਮਾਈਨਸ 9/25, ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 25, 16 ਮਾਈਨਸ 9, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 7/25, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ। cos ਸਕੁਏਅਰ a ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ cos ਦਾ ਵਰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਬ ਬਟੇ ਆਧਾਰ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਦਾ ਵਰਗ ਸੀ। ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। 4 ਦਾ 16, 5 ਦਾ 25, 3 ਦਾ 9, 5 ਦਾ 25, ਅਤੇ ਆਪਣਾ 7/25 ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ 8.1 ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਬੀ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਨ A ਬਰਾਬਰ 1/3 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਈਨ A cos C ਪਲੱਸ cos A ਸਾਈਨ C। ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਕੋਣ। ਤਾਂ ABC ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨ A ਜੋ ਹੈ 1/3, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਨ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬ ਬਟੇ ਆਧਾਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਟੈਨ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ A ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 1 ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ, 1 ਜੋੜ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 2। ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 2। ਤਾਂ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਸਾਈਨ A ਅਤੇ cos C, ਯਾਨੀ cos C ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਨ C ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ A ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਈਨ A ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ BC/AC, 1 ਇਹ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ cos A ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, A ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ AB/AC, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 3/2।
साइन सी हो जाएगा जी। हम जो सी की गल करते हैं तो ए लंब हो जाएगा जी, यानी कि ए बी बटे ए सी, यानी कि वर्गमूल 3/2। तो कॉस सी कितना हो जाएगा जी, बी सी बटे ए सी, यानी कि 1/2। हम प्रश्न की शर्तों के हिसाब नाल आपां की करिए जी, साइन ए यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की आपां कीमत पता करनी है। तो साइन ए कितना जी 1/2, कॉस सी कितना जी 1/2 प्लस कॉस ए कितना जी वर्गमूल 3/2, साइन ए कितना जी साइन सी कितना जी वर्गमूल 3/2। तो हो जाएगा जी 1/4 प्लस वर्गमूल हो गया 3/4। ताई आ जूल गुत्तम 4 1 + 3 यानी कि 4/4 आंसर आ जाएगा जी 1। तो दूसरा पार्ट जो है ਇਹਦਾ दूसरे पार्ट में कहता जी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आपने उपर कराया जी कॉस ए कितना जी वर्गमूल 3/2 गुणा कॉस सी कितना जी 1/2 माइनस साइन ए कितना जी 1/2 साइन सी कितना जी वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4। हम सेम संख्यावान ने निशानी उल्टा जी, तो आंसर आ जाएगा 0। अध्याय 8.1 का सवाल नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू कोण समकोण है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 तो पी क्यू बराबर है 5। तो साइन पी कॉस पी ते टैन पी का मुल पता करो। तो दसिया की गया जी पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसदे विच पी आर जोड़ क्यू आर इन्हां दा जोड़ 25 है जी, तो पी क्यू जो है वो 5 है। तो ये की है जी कि आप क्यू आर की पी आर की कीमत इन टर्म ऑफ क्यू आर कटांगे जी। तो देखो ये जोड़ आ तो इन्हों इधर लै जाएंगे तो 25 माइनस क्यू आर की कीमत आ जाएगा जी पी आर की। तो क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस की कहता, तो पाइथागोरस अनुसार पी आर का वर्ग जो है वो पी क्यू का वर्ग जोड़ क्यू आर के वर्ग के बराबर होएगा। तो पी आर की कीमत है जी 25 माइनस क्यू आर, पी क्यू की है 5 क्यू आर की क्यू आर जी। तो इनू हल करांगे तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर यानी कि 25 का वर्ग बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का वर्ग घटाओ क्योंकि विचाले निशानी घटाओ दी 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर यानी कि 50 गुणा क्यू आर। तो जो कि बराबर आ गया जी 25 जोड़ क्यू आर के वर्ग के। तो देखो इधर भी प्लस के क्यू आर पे इधर भी प्लस के क्यू आर का वर्ग पे, तो कैंसल आउट हो जाएंगे जी। तो बच जाएगा 625 माइनस 50 इंटू क्यू आर बराबर 25। तो हम इसनों माइनस एक पासे कर लाँगे क्यू आर वाले एक पासे बिना क्यू आर वाले एक पासे। तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। छः सौ 25 माइनस 25 इंटू 50 इंटू क्यू आर, तो आ जाएगा 600 इक्वल टू 50 इंटू क्यू आर। तो क्यू आर की कीमत आ जाएगी जी 600/50 जो कि आ जाएगा 12। तो हम जो क्यू आर 12 है तो पी आर कितना हो जाएगा जी 25 माइनस क्यू आर सी, तो 25 माइनस 12 आ जाएगा 13। तो हम आपको तिना की कीमत पता लग चुकी है 13 ये 12। तो सवाल दे विच करांगे जी साइन पी। तो जो साइन पी पता करना तो पी के सामने लंब हो जाएगा लंब बटे कारण यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर
जो कि 12/13 बनेगा। cos p हो जाएगा जी PQ/PR यानी कि आधार बटे कारण यानी कि 5/13। तो tan p हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि QR/PQ यानी कि 12/5। सवाल नंबर 11, दसो कि हेठ दिते कथन ठीक हैं या गलत। अपने उत्तर की पुष्टि करो। कहना जी tan A का मुल हमेशा 1 तो घट होंदा है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। tan A की कीमत 1 तो वध भी होंदी है जी, 1 तो घट भी होंदी है। क्यों? क्योंकि tan A की कीमत आ जिहड़ी वो लंब ते आधार के अनुपात के उपर निर्भर करती है। तो लंब ते आधार का अनुपात 1 तो वड्डा या 1 तो छोटा भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा जी अपना गलत। कहता कोण ए दे किसी मुल लई सीकेंट ए की कीमत 12/5 हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी, क्योंकि सीकेंट ए की जो कीमत है वो कर्ण बटे आधार के अनुपात के उपर निर्भर करती है। सानू पता कि कर्ण जो है वो आधार या लंब दोनों चों किसी तो भी वड्डा होंदा है। तो जदों अनुपात दे विच उपरली रकम न्यूमीनेटर वड्डी होएगी तो अनुपात हम कदे भी 1 तो भी वड्डा हो सकता है। तो ही उत्तर ये स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा जो है कि cos A कोण A दे कोसीकेंट का संखेप रूप है, जो बिल्कुल सही है अपना, जो कि गलत है। जो कि गलत है। कोसीकेंट नहीं है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होंदा है। कोसीकेंट जो है उस साइन दे विलोम नूं कहा जाता है। तो कॉस का पूरा नाम कोसाइन ऑफ ए है, ना कि कोसीकेंट। चौथा जी कॉट अते ए का गुणनफल होंदा है। बिल्कुल नहीं, कॉट अते ए का गुणनफल नहीं होंदा, बल्कि कोई भी साइन ए अते ए का गुणनफल नहीं होंदा। असल विच यह अनुपात होंदा है कोण ए के अनुसार। तो ही अपना स्टेटमेंट गलत है जी। अगे आ गया जी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो हम देखो, क्योंकि साइन थीटा की अपनी जो फार्मूला आप कढ़ते हैं वो आना होंदा जी लंब बटे कर्ण। तो अपन पता कि कर्ण हमेशा लंब या आधार दोनों तो वड्डा होंदा। तो इस करके कभी भी ये चीज़ पॉसीबल नहीं है। साइन थीटा की कीमत जो है वो 1 तो वड्डी नहीं हो सकती। तो ये भी किया सीगा जी गलत। सो उम्मीद है तुहानूं अभ्यास करने में सुखाला होया होगा। तो जे मेरी मेहनत तुहानूं चंगी लगे तो वीडियो नूं लाइक, चैनल नूं सबसक्राइब करियो। जे तुसीं अगे कोई क्वेश्चन पूछना चाहुंदे हो तो मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच मैसेज करो। मैं जिन्नी जल्दी हो सकूँ तुहाडा रिप्लाई जरूर करूँगा। धन्नवाद।